ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فائقہ ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب سے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد سوائے محنت اور ضلالت کے کچھ نہیں دیکھا۔ سارا دن گدھوں کی طرح کام کیا جاتا اور پھر بھی سوائے تکلیفوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ دراصل میرا تعلق سندھ کے اس شہر بلکہ گاؤں سے تھا جو کہ ایک وڈیرے کی ملکیت تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ گاؤں کیسے کسی دوسرے کی ملکیت میں جا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی کے پاس اگر طاقت اور پیسہ آ گیا ہے تو وہ آگے پیچھے والے گاؤں اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور وہاں کے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ان کو شے مل جاتی تھی، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم جیسے غریبوں کا سانس بند کر دیتے تھے، اور ان سے پوچھنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان سے بغاوت کرنے کی کوشش بھی کرتا تو یہ اس کو ایسی موت مارتے تھے کہ باقی سب لوگ زندہ رہنا چاہتے تھے، چاہے وہ زندگی ان کے لیے غلامی کی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیں موت سے اس طرح ڈرا دیتے کہ کوئی بھی آزادی کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا اور خاموشی کے ساتھ اس غنیمت والی زندگی کو ہی سب کچھ مان لیتا، چاہے اس میں عزت ہو یا نہ ہو، ان کے لیے سانس آنا اہم ہوتا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور ابا کو ہمیشہ سے ہم نے ان سرداروں کی زمینوں پر کام کرتے دیکھا تھا۔ ہم ان کی زمینوں میں ہل چلایا کرتے تھے، بیج بویا کرتے تھے اور اس کی گوڈی کیا کرتے تھے، اور پھر فصل وغیرہ کاٹ کر اور دانہ وغیرہ پسوا کر ان کے گھر بھجوایا کرتے، اور پھر اس کے بعد خیرات میں ہمیں راشن وغیرہ دے دیا جاتا۔ آج صبح ہی ابا کو ڈیرے پر بلایا گیا تھا اور ہم بہت پریشان تھے، کیونکہ جب بھی اس طرح سارے گاؤں والوں کو ڈیرے پر بلایا جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی بہت بری خبر ہماری منتظر ہوا کرتی تھی۔ ابا جب آئے تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ہم اسکول وغیرہ نہیں جا سکتے تھے، بلکہ گاؤں کے اسکول میں ہی ہم نے 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں، اور پھر ان کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ آگے پڑھ سکیں، کیونکہ ان کو اتنا معلوم تھا کہ اگر ہم لوگ پڑھ لکھ گئے تو ہمیں شعور آ جائے گا اور اپنے حقوق کا خیال ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے وہ ہمیں پڑھائی سے ایسے دور رکھتے تھے کہ جیسے وہ ان کے لیے کوئی اچھوت ہو، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ چالاک لوگ تھے اور حکومت اور پولیس والوں کو پیسہ وغیرہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کرتے۔ اسی وجہ سے ہم سب لوگ ان طاقتور لوگوں کی طاقت کے آگے مجبور ہو چکے تھے، اور ایک آزاد ملک میں ہو کر بھی غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، اور کسی کو بھی ہم پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ ہم جیسے کمزوروں پر یہ طاقتور حکومت کر کے جیسے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے۔ ایک بار بہت زیادہ بارشیں آ گئیں اور فصل پکی ہوئی تھی، مگر کاٹنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، تو اسی وجہ سے کافی زیادہ فصل خراب ہو گئی، اور سب کسان یعنی گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا، اور سردار نے بلا کر سب کو بہت زیادہ مارا بھی تھا اور راشن نہ دینے کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بارشیں آنے والی ہیں اور تم لوگ وقت سے فصل کاٹ لو؟ تو سب نے ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ فصل بہت زیادہ تھی اور ہم نے کاٹنے کی کوشش کی تھی، مگر ممکن نہیں ہو سکا۔ لیکن سردار کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور اس نے سب کو بہت زیادہ مارا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا تھا، بلکہ اس نے سب کا الزام تمام گاؤں والوں پر ڈال دیا۔ سب اس وجہ سے بہت پریشان تھے کہ پھر اس سال وہ راشن نہیں دے گا تو سارا سال کیسے گزرے گا، کیونکہ وہ تنخواہیں تو دیتا نہیں تھا، بس راشن ہی دیا کرتا تھا، اور اس کے ظلم کے آگے کوئی نہیں بول سکا تھا، کیونکہ جو راشن وہ آگے پورے سال کے لیے دیتا تھا، اس بار اس نے اس راشن کا آدھا حصہ پورے سال کے لیے دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میری نرم دلی اور گداز طبیعت ہے کہ میں تم لوگوں کو آدھا راشن بھی دے رہا ہوں، ورنہ جو تم لوگوں کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے تو تم لوگوں کو میں اس کا 1% بھی نہ دیتا اور تم لوگ بھوکے مر جاتے۔ میں نے دل میں یہی خیال کیا کہ کاش تم ترس کھا کر یہ راشن نہ دیتے
और हम लोग वाकई में भूखे मर जाते तो कम से कम मर कर ही सुकून पा लेते। अब्बा और अम्मा बहुत परेशान थे कि इस आधे साल के राशन के साथ पूरा साल कैसे गुजरेगा, क्योंकि अगर दिन में एक वक्त का खाना खाया जाता तो फिर ये मुमकिन हो सकता था कि ये राशन सारा साल निकाल जाता। मैं सोचती हूँ कहाँ पर होंगे वो लोग जो दूसरों की मदद करते होंगे और उनको इस ग़ुलामी वाली ज़िंदगी से निकाल सकते होंगे। कोई हमारे लिए क्यों खड़ा नहीं होता था? कोई हमारी अज़ियतें और दुख क्यों नहीं सुनता? और कोई हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करता कि हम बेकसूर होकर भी इन जैसे लोगों के हत्थे चढ़े हुए थे और इतनी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि हमें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी, जबकि सारा दिन डंगरों की तरह हम काम करते रहते। मैं बैठकर बस यही सोचती रही कि आखिर हमारा कसूर क्या है। जाहिर सी बात है, हमारा कसूर यही था कि हम इन लोगों के जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि वो हक पर हैं। इसी वजह से कोई उनके साथ बल्कि उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पा रहा, जबकि हकीकत तो ये थी कि एक दिन मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर सारे गांव वाले उनके साथ बगावत करने पर आ जाएं और सब मिलकर एक रोज़ ये काम करें तो तुम यकीन करो जो जुल्म हम पर हो रहे हैं उनका तोड़ हो सकता है। तो उसने कहा ये सब लोग ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं और उनकी ग़ुलामी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुके हैं और इस ग़ुलामी को ये नमक हलाल करना कहते हैं। सो अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा मंसूबा बनाएगा तो कोई दूसरा सरदार की नज़रों में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए उसकी ये बात वहाँ जाकर बता देगा। इसीलिए तुम गलती से भी किसी की आगे ये बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हम लोग बगावत पर उतर आए तो हमारी गर्दनें हमारे तन से जुदा कर दी जाएंगी। तो मैंने कहा जैसे हमारी यहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही है तो इससे बेहतर क्या मौत नहीं? तो उसने कहा मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जिस तरह की मौत ये जालिम सरदार हमें देंगे उससे डर लगता है। और हम तो लड़कियां हैं, हमें अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए बस खामोशी को अपनाना होगा। मेरी सोच अपने तमाम बहन भाइयों से काफ़ी अलग थी और मैं ये सोचा करती थी कि कभी न कभी तो मैं उनके साथ बगावत पर ज़रूर उतर आऊँगी, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख होता था जब मेरे गांव के लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता। अगर कोई कसूर होता तो उनके साथ ऐसा किया जाता तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, बल्कि मैं ये सोचकर ख़ुद को तसल्ली दे देती कि चलो जो भी हो रहा है ये उनके अपने अमलों का नतीजा है। लेकिन जब सबके अमाल इतने अच्छे थे मगर उनको सिला बिल्कुल नहीं मिल रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब्बा काफ़ी परेशान लग रहे थे। अम्मा और हम बहन भाई भी उनको देखकर परेशान हो गए, मगर उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम लोग जानते थे बात यकीनन कोई बहुत बड़ी हो गई है, इसी वजह से अब्बा इतने परेशान लग रहे हैं। मेरे दोनों भाई छोटे थे मगर फिर भी बेचारे सारा दिन उनके डेरे पर काम करते रहते और उनकी भैंसों का ख्याल रखते। फिर उन भैंसों को और जानवरों को बेचकर ये सरदार पैसा कमा रहे थे। उनको मुफ्त के ग़ुलाम मिले हुए थे। क्योंकि पंचायत डेरे पर ही हुई थी, इसलिए मैंने अपने भाई के आने का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया और जब वो आया तो उसको खाना वगैरह देने के बाद मैंने कहा कि पंचायत पर क्या फ़ैसला हुआ, क्योंकि वो आज काफ़ी चुप लग रहा था, वरना जैसे भी हालात रहे थे वो आकर कोई ना कोई शरारत कर देता था। या तो हम तंग आ जाते थे और या हंस दिया करते, लेकिन आज वो खिलाफ़े मामूल काफ़ी ज़्यादा खामोश लग रहा था। तो उसने मेरी जानिब हैरानी से देखा और कहा कि अब्बा ने नहीं बताया क्या? मैंने कहा कि अगर मुझे मामले का ज़रा सा भी इल्म होता कि किस वजह से पंचायत बिठाई गई है तो शायद मैं खुद ही अंदाज़ा लगा लेती, मगर अब्बा कुछ नहीं बता रहे और तुम भी यूँ तजस्सुस फैला रहे हो, तो क्या बेहतर नहीं कि बता ही दो क्या हुआ है? मुझे क्या मालूम था कि जब वो बात करेगा तो मेरे सर पर आसमान गिर जाएगा। उसने कहा अगर अब्बा ने नहीं बताया फिर मैं भी नहीं बताना चाहता। तो मैंने उसकी बाजुओं पर हाथ रखा और कहा कि प्लीज़ मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरा ध्यान किसी और काम में नहीं लग सकेगा, इसलिए बता दो। तो उसने गहरी सांस ली
और कहने लगा ज़ाहिरा बाजी के रिश्ते की बात हुई है। तो मैंने चौंक कर बेयकीनी से उसे देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो मैंने आगे पीछे देखा कहीं ज़ाहिरा बाजी सुन तो नहीं रही, मगर मुझे मालूम था कि उस वक्त वो अपने कमरे में बैठकर कढ़ाई कर रही होगी, क्योंकि कढ़ाई करना उसका मनपसंद काम था और अपने जहेज़ के लिए वो खुद से चादरें वगैरह सारा दिन कढ़ती रहती थी। तो मुतजस्सिस अंदाज में पूछा कि ये रिश्ता किसने भेजा है? मेरे भाई ने दुख से मुझे देखा और कहा कि मुनव्वर के लिए आया है। अब की बार मेरे सर पर वाकई में आसमान टूट पड़ा कि मुनव्वर हमारे गांव का वो आदमी था जो 40 साल से ऊपर का था और सरदारों का ख़ास ग़ुलाम था। उसने पहले ही 2 शादियां कर रखी थी और अपनी एक बीवी को तो वो अपने अताब का निशाना बनाकर इस दुनिया से रुखसत कर चुका था और दूसरी 2 बीवियों में से उसका बेटा नहीं था और इसी वजह से उसकी शादी करने का शौक़ फिर से जाग उठा था और शायद उसने इसी वजह से सरदार के जहन में ये बात डाली होगी और सरदार ने मेरी बहन का नाम ले लिया होगा। अब्बा ने कुछ वक्त पहले सरदार से कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो सरदार ने जैसे उन पर एहसान करने वाले अंदाज में कहा होगा कि मैं अपने ख़ास मुलाजिम के साथ उसकी शादी करवा देता हूँ। मगर अब्बा को कहाँ मालूम था कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब उनका फ़ैसला सुनकर यकीनन उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो इनकार कर सकें, क्योंकि मालूम था अगर इनकार कर भी देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अब वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैं कमरे में आई तो मेरी बहन ने मुझे कहा, फ़ायका इधर आओ, देखो मैंने कितना प्यारा फूल बनाया है। मैंने दुख से उसे देखा, लेकिन वो इस वक्त इतनी खुश लग रही थी कि मैंने उसकी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर सरदार ने कह दिया है तो अब कोई भी उनके फ़ैसले से इख्तलाफ नहीं कर सकेगा। उसका दिल रखने के लिए मैंने उस फूल की तारीफ़ कर दी थी और कहा था कि तुमने वाकई बहुत अच्छा बनाया है, और वो तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे कहा, मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ। तो उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि तुम तो आधी रात तक उल्लुओं की तरह जागने की आदी हो, तो अब इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। अब उसको क्या बताती कि उसकी परेशानी ने मुझे चंद लम्हों में लाग़र और कमज़ोर कर दिया था। मैं बस ये सोचकर परेशान हो रही थी कि जब मुनव्वर के साथ रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद मेरी बेचारी बहन को कितनी अज़ियतें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो मुझे कोई जहनी मरीज़ लगता था जो अपनी बीवी को मारकर सुकून हासिल करता, और सरदार का ख़ास मुलाजिम होने की वजह से कोई उसको पूछ नहीं सकता था। सरदार ने अपने घर की औरतों को भी ग़ुलामों की तरह ही रखा हुआ था, और इसीलिए उसका मानना ये था कि औरत को हमेशा पाँव की जूती बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जब उसको सर पर बिठाने की कोशिश करते हो तो ये सर पर चढ़कर नाचने लगती है। इतनी घटिया सोच रखने वालों से हम क्या ही कोई अच्छी उम्मीद रख सकते थे। चांद की 14वीं रात, जो कि मेरा मनपसंद मंजर और मनपसंद रात हुआ करती थी, आज वो मेरे लिए इंतहाई बेमकसद हो गई थी, क्योंकि इस रात ने जैसे मेरी बहन की ज़िंदगी अंधेर कर दी थी। डेरे पर बात हो चुकी थी तो अब ये निकाह से ज़्यादा अहमियत रखती थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल में सोच रही थी कि शायद कोई तो मेरी बहन के लिए बोलेगा और उसके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लेकिन फिर मुझे ख़याल आया कि हमारे गांव की कितनी ही लड़कियां ऐसी थीं कि जिनकी यूं शादी कर दी गई और फिर वो मरा भी गईं, और ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ था। मगर सब ने यही शुक्र अदा किया था कि शुक्र है ये हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ, और किसी और की बेटी के साथ हुआ तो हम क्यों उसके लिए आवाज़ बुलंद करके मुसीबत अपने घर ले आएं। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये मुसीबत कभी भी किसी के घर आ सकती है, क्योंकि उस वक्त तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा हमारे साथ करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी एक पर बुरा वक्त आए तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल वो वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन हम तो बस इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि शुक्र है हम उससे बच गए और हम उसकी लपेट में नहीं आए। सब गांव वाले ये बात ज़रूर कहा करते थे कि सबकी बेटियां सांझी होती हैं, मगर बातें करने के लिए सबकी बेटियां सांझी होती हैं
लेकिन अमली तौर पर जब कुछ करने को किसी को कहा जाता या कोई ऐसा वक्त आ जाता तो फिर वो उसी एक शख्स की बेटी होती थी जिस पर जुल्म हो रहा होता, और बाकी हम सब खामोशी से या दुख से देख रहे होते थे, मगर बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनको डर होता था कि अगर हमने बात की तो जो मुसीबत हमसे दूर है वो हम पर आ जाएगी। मगर ये बात कोई तस्लीम नहीं करता था कि अगर वो आज इस मुसीबत से बच रहे हैं तो कल उनके घर ज़रूर आएगी, क्योंकि खामोश रहकर आपने भी उस जुल्म का साथ दिया होता है। सारी रात मैंने बेसकूनी के साथ गुजारी थी और बार बार उठकर अपनी बड़ी बहन के चेहरे को देख रही थी। अपने आंसुओं पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं जानती थी चंद दिनों बाद उसकी उस मुनव्वर नामी मनहूस इंसान से शादी कर दी जाएगी और हम लोग बस खामोशी से आंसू बहाते रह जाएंगे। आज मुझे उन तमाम लोगों की तकलीफ़ें महसूस हो रही थी। इन तमाम गांव के लोगों की अज़ियतें समझ में आ रही थी कि जिनकी शादियों पर हम जाते थे और सोचा करते थे कि ऐसा भी क्या डरना कि जिसकी 3 बार पहले शादी हो चुकी है उसको अपनी बेटी दे दी जाए। हमारे दर्द और हमारी तकलीफ़ में सिर्फ हमारी होती हैं। उसका ये दावा कि हम आपका दर्द समझ रहे हैं, सिवाय एक फजूल लाइन के और कुछ भी नहीं। सुबह उठी तो सर में शदीद दर्द हो रहा था और पता नहीं कि मुझे बात बात पर रोना आ रहा था। और जब मेरी बहन ने मुझे उठाया और मुझे रोते हुए देखा तो वो परेशान हो गई। जिस तरह वो मेरी परवाह कर रही थी और फिक्र कर रही थी तो मुझे पहले से भी ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन मैं उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले रोज़ जितनी परेशान अम्मा नज़र आ रही थी तो उससे मुझे ये भी मालूम हो गया कि अब्बा ने यकीनन अम्मा को भी बता दिया है कि उन लोगों ने किस किस्म की डिमांड की है। और अब्बा और भाई जब खेतों की तरफ चले गए तो अम्मा ने मेरी बड़ी बहन को बुलाया और जब उसे ये बात बताई तो उसका चेहरा जर्द हो गया था। मैंने कह दिया, अम्मा अब ये हद हो रही है। वो मुनव्वर जिसकी मरने की उम्र है उसके साथ आप बाजी की शादी कैसे कर सकते हैं? तो अम्मा ने कहा, बेटा हम यहाँ पर ग़ुलाम हैं और उस सरदार ने यह धमकी दी है कि अगर हमने तुम्हारी बहन का रिश्ता उसे ना दिया तो वो हमारे बेटों को नुकसान पहुँचा सकता है। और बेटों को ही नहीं बल्कि उसने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कहा है कि सब कुछ उसके नीचे है। तो अगर ज़ायरा खुदा ना करे गुम हो जाती है तो यहाँ पर कौन है जो तुम लोगों की बात सुनेगा? उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं अच्छी तरह जानती थी अगर उस घटिया इंसान ने ये सब कुछ कहा है तो वो यकीनन कर भी सकता था और कोई उसे पूछ नहीं सकता था। हम दोनों बहनें कमरे में आ गईं। मैं रो रही थी जबकि वो साकित सी बैठी हुई थी कि इंसान जब सदमे और अजियत की आखिरी हद पर होता है तो उसकी आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं। जब वो कुछ ना बोली और ना ही रोई तो मैंने उसे कहा कि ज़ायरा बाजी कुछ तो कहें, आप इतनी खामोश क्यों हैं? उसकी खामोशी से मुझे वहशत हो रही थी तो उसने मुझे दुख से कहा कि पता है जब ताहिरा, उन्होंने अपनी अजीज़ जान सहेली का नाम लिया जिसकी गांव के एक कातिल के साथ शादी हो गई थी और उसने शादी के चंद महीनों बाद ताहिरा को मार भी दिया था। जब खामोश हो गई तो मैंने उन्हें कहा कि क्या ताहिरा? तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जब ताहिरा की ज़बरदस्ती उस कातिल के साथ शादी की जा रही थी तो उसने सब की कैसे मिन्नतें की थी कि तुम लोग मेरे हक़ के लिए बोलो। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो यकीन करो कल तुम लोग भी इस लपेट में आ जाओगे और तुम लोगों के लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जैसे आज तुम लोगों को लग रहा है कि ये मुसीबत सिर्फ ताहिरा पर आई है और किसी दूसरे पर नहीं आ सकती, तो ये तुम लोगों की गलत फहमी है। तो मैंने डरते हुए कहा था कि ताहिरा वो दरिंदा है, सरदार वो तो हम लोगों को मार देगा और हमें बेरहम मौत मारेगा। तो उसने कहा था कि ऐसी ज़िंदगी से बेरहम मौत अच्छी है। जिस लम्हे से मैं इस वक्त गुज़र रही हूँ, यकीन करो मैं यही चाह रही हूँ कि मौत आ जाए। अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं इसी वक्त ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ये अज़ाब ख़त्म कर चुकी होती। अगर वो हमें मार भी देगा तो क्या हो जाएगा? कम से कम आने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ तो आसान हो जाएंगी। हमारे बड़े तो उनसे कभी बगावत नहीं करेंगे
लेकिन हमें तो करनी चाहिए। मगर हम में से किसी एक ने भी उसका साथ नहीं दिया था और उसे हमने नसीहतें कर दी कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा था कि ठीक भी सिर्फ उनके लिए होता है जो कोशिश करते हैं, और यहाँ तुम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि कोई बस इतना ही कबूल कर ले कि ये गलत हो रहा है। सच तो ये है फायका, किस वक्त हमें लगा था कि वाकई ये मुसीबत तो सिर्फ तायरा पर आई है, किसी और पर नहीं हो सकती। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो मैंने उसके आंसू पोंछने के बाद कहा, बाजी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है और तुम्हारे हक के लिए मैं लड़ाई करूंगी। तो उसने मुझे बाजू से पकड़कर पास बिठा लिया और कहने लगी, तुम कुछ नहीं करोगी। सरदार बहुत बुरा इंसान है, वो एक पत्थर दिल इंसान है, उसके सीने में दिल नहीं है, वो किसी पर रहम नहीं खाएगा, और मैं नहीं चाहती कि हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। मैं सबको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लूँगी। अगर हमने उससे बगावत करने की ज़रा सी भी हिम्मत कर ली तो यकीन करो वो अपने खिलाफ खड़े होने वालों को मार देता है, क्योंकि इतना तो मुझे यकीन है कि हमारे साथ कोई और खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सब यही सोच रहे होंगे जो तायरा की शादी वाले दिन हमने सोचा था कि ये मुसीबत सिर्फ तायरा पर ही आनी थी। मैं बहुत रोई, मगर बाजी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, और फिर उस अयाश मुनव्वर का रिश्ता हमारे घर आ गया। और जाहिर सी बात है ये तकल्लुफ़ ही था, वरना सब कुछ पहले से तय हो चुका था। अगर कोई और दिन होता तो मैं भी अपनी बहन की शादी की बहुत तैयारियां करती, मगर यहाँ तो मातम का समा था, तो क्या तैयारी की जाती। चंद दिनों बाद की तारीख लेकर वो लोग चले गए और हमारे घर में सफ़े मातम बिछ गई। जिस रात उसकी मेहंदी थी उस रात अब्बा कमरे में आए और उससे माफ़ी मांगी और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यकीन करो ये बड़े लोग हैं, इनके साथ पंगा लेकर हमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी इनसे डर डर कर गुजार दी थी। इसी वजह से वो लोग शेर बन गए, क्योंकि उनको मालूम था कि गांव वाले कभी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। दिल बहुत तकलीफ़ में था, मगर कुछ हो नहीं सकता था। अगले दिन जब वो दुल्हन बनी हुई थी तो इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो, लेकिन किस्मत कितनी ख़राब थी। फिर भी हम सब ने उसे अच्छी किस्मत की दुआएं दी और फिर उसकी रुखसती हो गई और हमारा घर खाली हो गया। अपनी बहन के साथ इस हुए जुल्म पर हम में से कोई भी नहीं बोल सका, और मुझे इसी चीज़ का गम खा गया था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। और गांव के लोग बाद में हम लोगों से अफसोस करने के लिए आए थे, और मेरा दिल चाहा कि काश मैं एक एक का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से निकाल सकती। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि इनमें से कई लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो चुका था, और जब ऐसा हो रहा था तो हम में से कोई भी नहीं बोला था। इसलिए अब मैं किसी से शिकवा करने का कोई हक नहीं रखती। मेरी बहन भी हमसे कम ही मिलने आती थी और उसकी हालत बता रही थी कि वहाँ पर उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। इसलिए मैंने कभी पूछने की जसारत नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं ये चाहती थी कि अगर मैं उससे पूछूं और वो मुझे अपनी तकलीफ़ बताए तो मैं उसके लिए जब कुछ नहीं कर सकूंगी तो मेरी अजियत बढ़ जाएगी। इंसान उतना अपनी तकलीफ़ों पर नहीं रोता जितना उसे अपनों की तकलीफ़ों पर रोना आता है। अपनी तकलीफ़ों पर और अजियतों पर इतनी बेबसी नहीं होती, मगर उन लोगों की तकलीफ़ों पर बहुत दर्द होता है जो अपने होते हैं। उन दिनों अब्बा की ड्यूटी लगी थी कि खेतों में से जड़ी बूटियों को निकालना है, और अम्मा भी उनका साथ दे रही थी, मगर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और बारिशों का मौसम था, इसलिए मैं अब्बा के साथ चली गई कि उनका कुछ हाथ बटा सकूं। मुझे क्या मालूम था कि मुसीबत मेरे गले इस तरह पड़ने वाली है। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए और अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हुई, क्योंकि बारिशों में भीगने की वजह से उनको मौसमी बुखार हो गया था। ज़ायरा बाजी तो महीनों बाद हमारे घर आया करती थी, इसलिए अम्मा को अब उसकी भी फिक्र खाए जा रही थी। उस दिन मैं खेतों में काम कर रही थी कि अचानक मुझे यूं एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है।
पहले तो मैंने इसको अपना वहम जाना कि यहाँ पर सभी काम कर रहे हैं तो किसी की निगाह पड़ ही गई होगी, लेकिन मुझे फिर महसूस हुआ जैसे कोई मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा हो। मैंने दरांती को ज़मीन पर रखा और जब खड़े होकर देखा तो सरदार हाकिम अली का बेटा, जिसका नाम लियाकत था, और वो कमाश फितरत इंसान था। मुझे देखते ही उसने अजीब अंदाज में होंठों पर ज़बान फेरी तो मैं डर गई। मैं इन लोगों की नीच फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और जिस घटिया अंदाज में उसने मुझे देखा था तो मैंने वहाँ से भाग जाने में ही आफियत समझी। मैं घबरा कर वहाँ से घर आ गई और बाबा को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी किस्म का कोई हंगामा हो। जाहिर सी बात है, ये उन लोगों की ज़मीनें थीं, तो अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो किसी को उनसे नहीं पूछना था, क्योंकि वो सरदार का बेटा था। वो जो मर्जी करता, उसको पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर सवाल मेरी जानिब आ जाता। बाबा जब रात को घर आए तो मुझे कहने लगे, लड़की तुम मुझे बताए बगैर क्यों आ गई थी? तो एक पल को मेरा चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन मैंने अपने तासुरात छुपा लिए और कहा कि बाबा मुझे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं घर आ गई। उन्होंने मुझे नाराज़गी से देखा और कहने लगे, मुझे बता तो देती कमबख्त, मैं कितनी देर वहाँ पर परेशान बैठा रहा कि पता नहीं कहाँ गई हो। तो मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर जवाब देती तो गुफ्तगू तवील हो जाती और मुझे डर था कि कहीं तवालत इख्तियार करती गुफ्तगू मेरे वहाँ से आने का राज खोल ना देती। और अगली शाम मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब लियाकत का निकाह का पैगाम हमारे घर आया। हम सब जैसे सदमे में चले गए थे, क्योंकि सरदार हाकिम खुद आया था। वो 40 साल का पक्की उम्र का मर्द था और मैं 19 साला कमज़ोर लड़की। मैं बहुत रोई और मुनव्वर, जो कि अब मेरा बहनोई था, उसने आकर कहा कि तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है कि सरदार हाकिम की बहू बन रही हो। और मेरी बहन की तरफ तंबीही नज़रों से देखते हुए कहा, ये इनकार ना करे, क्योंकि अगर इसने इनकार किया तो जाहिर सी बात है सरदार इसकी गर्दन उतार देगा। और इसको समझाओ और कहो अगर ये उसके घर की बहू बन गई तो हमारा मर्तबा भी ऊंचा हो जाएगा। मेरी बहन ने जब मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने बिफरते हुए उसे देखा और उसे कहा कि तुम मेरा गम नहीं समझ रही कि वो एक शादीशुदा इंसान है। तो उसने मुझे कहा कि देखो, यहाँ पर तुम किसी अच्छे और कवारे इंसान की उम्मीद भी नहीं रख सकती। तो मैंने कहा, फिर मैं खुदकुशी कर लूँगी। जिस पर मेरी बहन ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, बेवकूफ़ी मत करो। तुम दूसरी लड़कियों के लिए अगर कुछ करना चाहती हो तो तुम लियाकत से शादी कर लो। तो मैंने दुख से देखा और कहा, मैं ये मिसाल कायम कर दूं कि हिम्मत हार कर बैठ जाएं और इन सरदारों की ग़ुलामी करते रहें। तो उसने कहा, बेवकूफ़, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। और यकीन करो, शादी से पहले मुनव्वर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, मगर शादी के बाद वो काफ़ी बदल गया है और तुम लियाकत को भी बदल सकती हो। तुम अपनी कुर्बानी देकर बाकी तमाम लड़कियों को कुर्बान होने से बचा लो। मैं बहुत परेशान थी, मगर मुझे मालूम था परेशानी इसका हल नहीं। और फिर मेरे इनकार और एहतजाज के बावजूद मेरा लियाकत के साथ निकाह हो गया। और उस रोज़ मुझे एहसास हो गया कि जो अजियत उस लम्हे उस लड़की पर गुज़रती है वो उसकी सगी बहन पर भी नहीं गुज़र सकती, क्योंकि बाजी की बार मुझे ये तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी जो अपनी बार हो रही थी। लाल जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। और फिर नहीं मुझे मालूम कब मेरी रुखसती हुई और कब सब कुछ हुआ। उस रात लाल जोड़े में मैं उसके कमरे में मौजूद थी, जो अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और आने वाली मेरी सौतन थी, जिसने आते ही जो बात कही तो वो सुनकर सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके हाथ में छुरी थी। मैं बहुत डर गई, लेकिन उससे कहा कि रुक जाओ, मैं जानती हूँ कि लियाकत का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि अगर अच्छा रवैया होता तो वो कभी मुझसे शादी ना करता, मगर मैं यहाँ तुम्हारी हमदर्द बनकर आई हूँ। उसने मुझे हैरानी से देखा,
तो मैंने कहा कि देखो, मैं समझदारी के साथ चलूँगी और मैं वादा करती हूँ कि मुझे लियाकत में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ये शादी मैंने गांव की बाकी लड़कियों के लिए की है। मैं चाहती हूँ कि सरदार और लियाकत को अच्छा सबक सिखाया जाए और वो हमारे गांव के साथ ये जुल्म करना बंद कर दे। जो मेरी सौतन थी वो भी हमारे गांव की ही लड़की थी, क्योंकि ये प्यारी लड़कियों से शादी कर लेते थे। उसने मेरी आंखों में सच्चाई देखी तो कहा कि ठीक है, और फिर मुझे मालूम था कि मर्द का दिल कैसे काबू में करना है। अपने दिल को मार कर मैंने लियाकत का दिल जीतना शुरू कर दिया, और वो मर्द था। उसे दूसरी बीवी से जो तवज्जो नहीं मिलती थी मुझसे मिलने लगी, तो वो मेरी हर बात मानने लगा। और फिर एक रोज़ उसने अपने बाप से भी बगावत कर दी, और जब उसे मालूम था कि उसका बाप उसकी नहीं सुनेगा तो उसने अपने बाप को मार दिया, और इस वजह से उसे खुद को जेल हो गई। मगर गांव के तमाम लोगों को आज़ादी मिल गई थी। सबकी जो ज़मीनें पहले थीं वो उनके हिस्से में आ गई थी। मैं जेल में उससे मिलने गई और कहा कि फ़िक्र मत करो, मैंने अच्छा वकील करवा लिया है और वो तुम्हें जितवा देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उसने मेरी जानिब देखा तो मैंने कहा कि जो ज़मीनें तुमने ज़बरदस्ती लोगों से ली थीं वो उनके नाम करनी होंगी, पेपर्स पर साइन करने होंगे। तो वो मेरी बात मान गया, और यूं सब लोगों को उनकी ज़मीनें वापस मिल गईं, और सब बहुत खुश थे, और मैं भी बहुत खुश थी। और उस रोज़ मैंने अपनी बहन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि मैंने खुद की कुर्बानी देकर बाकी सबको समझदारी से बचा लिया था। हमेशा याद रखें, जब कोई बुरा वक्त आए तो मायूस ना हुआ करें, बल्कि उसका कोई अच्छा हल निकाल लिया करें। और अब बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।